Hello dear children. So today's presentation is going to be from the last paragraph on page number 17. So can you pay attention and try to understand the things properly. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. So first of all, you have been told that in the family there is a frail young woman. There is a weak young woman. Frail young means she is young, though she does not look so young. That is the meaning of frail young. Frail young means somebody who is young by age, yet does not look so young by appearance. So that is the meaning of frail young woman. That in the family there is a frail young woman who has been preparing the evening meal for the entire family. Through eyes filled with smoke, she smiles. So as there is the arrival of a guest over there, as there is the arrival of a guest in the family, she gives a smile. She is really happy to welcome the guest. तो आपने क्या देखा कि मुकेश के परिवार में एक फ्रेल यंग वुमन है. फ्रेल यंग वुमन का मतलब कि एक ऐसी औरत की जो कि बाई एज तो यंग है लेकिन देखने में जैसे अब उतनी यंग नहीं लगती. तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों की वजह से या बहुत जरूरत से ज्यादा मजबूरियों की वजह से या कामकाज की वजह से आदमी अपने यूथ को खो देता है. जो यूथ का ग्लो होता है वो उससे छूट जाता है. तो शायद यही इस औरत के साथ में भी हुआ है कि वो यंग तो है लेकिन अब वो फ्रेल यंग सी दिखाई देने लगी है. और वो क्या कर रही है, वो इवनिंग मील प्रिपेयर कर रही है फॉर द होल फैमिली. Through eyes filled with smoke, she smiles. So as there is the arrival of a guest, as I told you कि जैसे ही परिवार में एक मेहमान का आगमन होता है तो वो मुस्कुराती है उसे देख करके. She has been giving her a welcome gesture. एक इस तरीके से मुस्कुरा करके एक अच्छी तरीके से उसका वेलकम करती है. And she has got her eyes filled with smoke कि जैसे उसकी आंखों में धुआं सा भरा हो ऐसा लगता है क्योंकि वो फायरवुड स्टोव के ऊपर कुकिंग कर रही है. She is the wife of Mukesh elder brother. So actually this particular young lady, this particular frail young woman is the bhabhi of Mukesh. She is the wife of Mukesh elder brother. So that is how she is going to be the bhabhi of Mukesh कि वो मुकेश की भाभी है. Not much older in years. So though she is not very much old in years, she is not quite elderly. She is quite young, but just on account of the pressure of circumstances, on account of the burden of circumstances, she has lost her beauty, she has lost her good looks, and that is why she has started appearing frail young. तो नैरेटर बता रही है कि ये औरत जो है ये मुकेश की जो बड़े भाई हैं उनकी वाइफ है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स. अभी ये उम्र बहुत उम्रदराज नहीं है. शी हैज बिगन टू कमांड द रिस्पेक्ट एज द बहू ऑफ द फैमिली. सो नाउ शी इज बीइंग कंसीडर्ड द बहू. शी हैज गॉट द डिग्निटी ऑफ द बहू और द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली कि उसे परिवार में बहू या डॉटर इन लॉ का सम्मान प्राप्त है. तो दैट इज व्हाट यू हैव बीन टोल्ड हियर. शी इज द Bahu or the daughter-in-law of the family, already the in charge of 3 men. So she has got the charge of 3 men. She has to supply meals for 3 men. That is what the line means. कि उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि जिन्हें उसे भोजन सप्लाई करना होता है, जिसके लिए उस लड़की को भोजन बनाना होता है, इस बहू को भोजन बनाना होता है. वो कौन लोग हैं? Her husband Mukesh and their father. तो उसका अपना हस्बैंड मुकेश और उनके फादर, इन लोगों के लिए इस लड़की को भोजन बनाना होता है. दैट इज व्हाट यू हैव बीन टोल्ड हियर चिल्ड्रन. आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अप टू हियर. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस. सो दैट इज what you have been told here about the customary traditions of the family. You have been told here about the traditional aspects of the family. So generally in the Hindu families, it is observed, that kind of a parda system is observed in the traditional Hindu families, that generally the bahus are not supposed to be exposing their face before their brothers-in-law, before their jeth and before their father-in-laws. कि जो फादर इन लॉ होते हैं, जो ससुर होते हैं और जो जेठ होते हैं उनके सामने फेस को एक्सपोज नहीं किया जाता है. तो ये एक जनरल हिंदू ट्रेडिशन होता है. तो दैट इज व्हाट यू हैव बीन टोल्ड हियर. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, दैट व्हेन देयर इज द अराइवल ऑफ द ओल्डर मैन ऑफ द हाउस, व्हेन देयर इज द अराइवल ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ द गर्ल, कि इस लड़की के फादर इन लॉ जैसे ही वहां पे आते हैं, व्हाट शी डज, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल. सो शी जस्ट गोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल. शी जस्ट लीव्स स्पेस फॉर हिम एंड शी गोज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल. सो दैट इज द कल्चर, दैट इज द ट्रेडिशन ऑफ अ हिंदू फैमिली कि बहुएं जो है वो ससुर के रास्ते में नहीं खड़ी होती हैं, उनके सामने जो है अपना चेहरा एक्सपोज नहीं करती हैं. तो ये सब चीजें एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में देखने को मिलती हैं. तो दैट इज द सेम थिंग दैट यू हैव बीन टोल्ड हियर, दैट शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल and brings her veil closer to her face. So that is what she does. She just brings her veil closer to her face. She brings her veil closer to her face. That is what this girl does. So this is a ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट कि हाँ एक जो है ये एक रेस्पेक्ट की भावना से ये सब तरीके की परंपराएं हिंदू कल्चर में चलती हैं. तो ये काफी कॉमन सी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप नहीं समझ सकते हैं.
As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before the male elders. So this is the demand of the custom. This is the demand of the tradition that generally the daughters-in-law must veil their faces before the male elders. कि जो daughters-in-law होती हैं वो male elders, चाहे वो ससुर हो या जेठ, male elders के सामने अपने चेहरे को ढक लेती हैं. That is the custom of a Hindu family. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. So far as the case of this particular family is concerned, so long as the condition of this particular family is concerned, here the elder one is an impoverished bangle maker. कि यहाँ पे जिस elderly fellow की बात हो रही है, यहाँ पे जिस बुजुर्ग की बात हो रही है, वो बुजुर्ग जो है वो एक impoverished bangle maker है. impoverished का मतलब गरीब. he is a poor bangle maker. So this poor bangle maker is the father-in-law of that girl. कि वो जो एक घर के अंदर बहू है उसके ये father-in-law हैं, यानी कि ये मुकेश के बाप हैं और मुकेश के बड़े भाई के बाप हैं. तो ये जो है इनके बारे में बताया जा रहा है कि he is an impoverished bangle maker, he is a poor bangle maker. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor and then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his children to school. All he has managed to teach them is what he knows, and that is the art of making bangles. So this is, children, what you have been told here. That despite long years of hard labor, that this man has been engaged in long years of hard labor, this man has been engaged in long years of hard labor, this man has been toiling very hard for a long time. toil का मतलब कड़ी मेहनत करना, कि बहुत लंबे समय से कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी. So first he had been working as a tailor and then he started working as a bangle maker. He has not been able to achieve much in his life. He has not been able to get much in his life. He has not been able to renovate even a house. He has not been able to reconstruct even a house. He has not been able to send his children to school. कि इतना भी वो नहीं कर पाया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए या जो है वो अपने घर को रिनोवेट कर पाए. वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया है. All he has managed is to teach them what he knows, the art of making bangles. So this is the only thing that he has been able to transfer to his offspring. Offspring का मतलब संतान, की अपनी संतानों को ये एकमात्र चीज है जो वो दे पाया है, और वो क्या है? The art of making bangles. की this is the only legacy that he has been able to transfer to his कमिंग जनरेशन, की अपने आने वाली जनरेशन को वो बस एकमात्र इतनी ही चीज दे पाया है कि उनको चूड़ियां बनाना सिखा पाया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं. तो इसका जीवन जो है बहुत हद तक नगण्य है, इसका जीवन बहुत हद तक इनसिग्निफिकेंट माना जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल गेन्स, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल अचीवमेंट्स. कि हाँ, जहां तक रुपया पैसा धन दौलत कमाने की बात है, हैसियत गाड़ी मोटर बंगला अर्न करने की बात है, तो उस मामले में इसकी हैसियत लगभग ना के बराबर रही है. इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, हु हैज वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड with the dust from the polishing of bangles. So different members of the family have been commenting about the situation in a different way. So now here you have been presented with the comment of Mukesh grandmother, and she says that it is their karam and their destiny, कि यही उनका भाग्य है. And she is really that kind of an unfortunate woman that she has seen her husband go blind with the dust from the polishing of bangles. कि वो लगातार बैंगल को पॉलिश करते हैं उसको चमकाने के लिए, सो उससे उड़ने वाली जो डस्ट है वो लगातार उसके हस्बैंड की आंखों में जमा होती रही और धीरे धीरे करते करते वो अंधा हो गया. तो दैट इज हाउ शी हैज बीन सेड हियर टू बी क्वाइट एन अनफॉर्चुनेट वुमन who has been complaining about the situation in such a way that it is his karam, his destiny, that it is the karam of everybody, it is the karam, it is the destiny of everybody in the family. ऐसा वो कहती हैं कि जिन्होंने अपने हस्बैंड को देखा है ये डस्ट से ब्लाइंड हो जाते हुए, और कौन सी डस्ट? जो ग्लास बैंगल की जो डस्ट है उससे ब्लाइंड हो जाते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा है. Can a God-given lineage ever be broken? So that is what she means to say, that a God-given lineage can never be broken. A God-given lineage, a God-given occupation can never be broken. That is what she wants to say here. कि वो कहना चाहती है कि as they have been born in the family of bangle makers, they cannot do anything else but to make bangles. कि चूंकि वो पैदा ही हुए हैं बैंगल मेकर्स के खानदान में, वो पैदा ही हुए हैं बैंगल मेकर्स के घर में, तो अब वो कुछ और कर भी नहीं सकते हैं. What they have got in their hand is to work as bangle makers and they cannot change this God given lineage. कि भगवान का दिया हुआ ये जो धंधा है ये बंद नहीं हो सकता है, ये यही हमें करना पड़ेगा.
Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, in every other yard, every street of Firozabad. So that is what the narrator tells you here, that since they have been born in the family of bangle makers, कि चूंकि वो bangle makers की family में पैदा हुए हैं तो उन्होंने केवल bangles ही देखी हैं हर जगह, in the yard, in every other yard, in every street of Firozabad they have seen only bangles. केवल उन्होंने बैंगल्स देखी हैं, कोई केवल उन्होंने चूड़ियां देखी हैं, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के गुच्छे, बंचेस ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow. Means they have seen only bangles of multi-hued, they have seen only the bangles of multiple hued. अलग अलग कलर्स की उन्होंने सिर्फ बैंगल्स देखी हैं, लाल, पीली, नीली, काली, हरी, नीली, हर किस्म की केवल बैंगल्स उन्होंने देखी हैं. और ये बैंगल्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये खुद तो कलरफुल हैं लेकिन ये उनकी जिंदगी की सादगी को बताती हैं, उनकी जिंदगी के कलरलेसनेस को बताती हैं. तो कहीं ना कहीं ये बैंगल्स जो हैं ये मिसमैच करती हैं, इन बैंगल्स का जो खूबसूरत रंग है ये मिसमैच करता है इन बैंगल मेकर्स की जिंदगी से. तो वही चीज आपने यहाँ पे देखी कि इन दिस वे दी बंचेस ऑफ बैंगल्स, दी स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स लाई इन माउंट्स, दीज बंचेस ऑफ बैंगल्स लाई इन माउंट्स, की इतने इतने उनके टीले लगे हुए हैं. माउंट्स, माउंट्स का मतलब टीला, उनके हीप्स लगे हुए हैं. इन द अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड मींस अनक्लियर्ड, इन द अनक्लियर्ड यार्ड्स देयर आर हीप्स ऑफ बैंगल्स. एंड दे आर पाइल्ड समटाइम्स ऑन दी 4-wheeled कार्ट, कि जो ऐसे 4 पहियों वाली गाड़ी होती है, ठेले होते हैं, उस पर उनको लाद लिया जाता है और यंग मैन जो है वो उसको पुश करते हुए जाते हैं अलोंग द शैंटी टाउन, अलोंग द स्ट्रीट्स ऑफ द शैंटी टाउन. शैंटी मीन्स डर्टी, कि ये जो गंदा और मैला कुचैला शहर है, इस मैले कुचैले शहर की गलियों में वो अपनी गाड़ी घुमाते हुए चूड़ियां बेचते हुए निकलते हैं. तो ये बात आपने बच्चों यहां तक देखी. तो मेरे ख्याल से आपने ये बात समझ ली होगी कि दिस पर्टिकुलर पैरा इज गोइंग टू बी स्टार्टेड विद द कमेंट ऑफ मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज बीन क्रिटिसाइजिंग हर फेट, हु हैज बीन क्रिटिसाइजिंग हर डेस्टिनी, कि हमारा भाग्य ही है ऐसा फूटा है कि हम इस घर में पैदा हुए, और चूंकि अब हम इस घर में पैदा हुए हैं तो हम इस गॉड गिवन लीनियज को बदल नहीं सकते, यही हमारा कर्म है. और उसने अपने हस्बैंड को देखा है अंधे हो जाते हुए ग्लास बैंगल की डस्ट से. तो वो सब जो है इसी बात का रोना रोते हैं, और ये आपने देखा कि हर जगह केवल बैंगल ही बैंगल्स वहां पे दिखाई देती हैं. ओके.